Welcome students in the second video of science for class 8 chapter 7 conservation of plants and animals. So in previous videos we have learnt about biodiversity in India and hotspots found in world as well as in India. Now there is a great problem for survival of animals and plants for the growing needs of human is becoming a threat to biodiversity. So what are the threats of biodiversity? We shall learn in this section. The various factors leading to extinction of wild species and depletion of biodiversity are: first, habitat loss due to increase in human population, deforestation and overgrazing, pollution, introduction of exotic species, climatic changes and human greed. So about them we shall learn one by one. As the first reason is habitat loss due to increase in human population. As you know that the population of human is increasing day to day, and more population means more food materials are needed, more places are needed to live, more factories are needed to set up, and thus many other various aspects which disturb our nature and the natural resources. So great increase in population in the last 70 years is responsible for the rapid decline of biodiversity, because more and more land is needed for agriculture, housing, for making roads and for constructing dams, bridges, power houses and industries. जैसा मैंने पहले ही बताया कि जितनी अधिक जनसंख्या उतनी अधिक जरूरतें, जैसे कृषि, घर, सड़क, डैम, पूल, पावर हाउस और इंडस्ट्री, ये कहाँ सेटअप किए जाएंगे? इसी पृथ्वी पर सेटअप किए जाएंगे। और पृथ्वी का आकार सीमित है, तो वह स्थान जो जंगलों से भरे हुए थे आज उनको काट करके इन सब चीजों में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो वी नीड more and more land areas, and thus due to the depletion of forest areas, the animals and plant who made their habitat in those places are at the limit of their depletion. अब वो चीजें खत्म हो रही हैं, अब वो समाप्ति के कगार पर आ चुके हैं। Deforestation and overgrazing, it is a great challenge for the biodiversity. So indiscriminate cutting of trees by man causes deforestation. Similarly, overgrazing by increased population of cattle and sheep causes shrinkage of grassland and loss of habitat of wild animal. वैसे लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जिनका पेशा पशुओं को पालना और पशु चराना है, वे अपने पशुओं को जंगलों में ले जाते हैं। वहाँ वेजिटेशन की कमी नहीं होती है और वे पशु इतने अधिक छोटे पौधे को खाते हैं कि वहाँ की धरती खाली हो जाती है, बंजर हो जाती है। एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉर आवर नीड, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम पेड़ों को काटते हैं और इस तरह से
पेड़ों की समाप्ति हम आसानी से कर देते हैं। फिर वो जो पेड़ या पौधे जो पैदा होने में कई साल लगाए हैं, अब कंप्लीटली वो वैनिश हो जाते हैं और इस तरह से हमारे धरती पर बायोडायवर्सिटी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ फैक्ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू pollute our environment. So, pollution is great threat for depletion of biodiversity. So, pollution, air and water get polluted with insecticides used in agriculture, toxic elements released from industries and petroleum products, weak and susceptible species are unable to tolerate the pollutants and are eliminated. चूँकि विभिन्न तरह के कीटनाशकों का उपयोग करने से, साथ में फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से बहुत सारे जहरीले पदार्थ हमारे वातावरण में मिल जाते हैं। साथ में ये कुछ वाटर बॉडीज में भी चले जाते हैं और वे जंतु जो कमज़ोर होते हैं, जो बहुत ही मासूम होते हैं, वे इस तरह के चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और इस धरती से समाप्त हो जाते हैं। थर्ड इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज, मीन्स द स्पेसीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू लोकेलिटी फ्रॉम सम अदर एरिया इज कॉल्ड एक्सोटिक स्पेसीज। यानी वैसे जंतु या पौधे जो किसी अन्य क्षेत्र में थे, सपोज ट्रॉपिकल रीजन्स स्पेसीज और एनिमल्स, इफ दे आर सेट अप इन desert areas, they cannot survive. And this type of species are called exotic species. It compete with the species already existing in that area and may cause extinction of some native species. तो यहाँ क्या होता है कि कुछ वैसे जंतु जो दूसरे जगहों से एक नए जगह में चले जाते हैं, तो या तो वह वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं, या अगर सरवाइव कर गए तो वहाँ के खास जो निवासी या जो पहले से पाए जाने वाले जंतु या पौधे हैं, उनके लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा का काम करते हैं और वहाँ के स्थानीय जो जंतु या पौधे हैं उनकी समाप्ति के कारण भी बन जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंजेज। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग चेंजेज in the temperature and rainfall pattern. These are responsible for global warming and melting of glaciers. Such changes have adverse effect on biodiversity. यानी मनुष्य, जैसा कि आपको पता है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ने से हो, फैक्ट्री लगाने से हो, या और उपभोग की वस्तुएं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो तरह तरह के गैस एग्जिट करते हैं, ये हमारे वातावरण में मिल करके वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पर बर्फ के पिघलने की घटनाएं हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और इस तरह से अचानक जो यह परिवर्तन हमारे वातावरण में होता है, यह हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए एक एडवर्स इफेक्ट यानी विपरीत प्रभाव डालता है और यह हमारे जैव विविधता के लिए हानिकारक साबित होता है। ह्यूमन ग्रीड। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैज थ्रेटेन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स, बियर्स, फॉक्सेज, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स etc. You know that human is eager from earlier time for hunting, using the meat of different animals, tusks, skins, and thus he always be a competitor for animals
and some of the rare or rarest species of plants. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि मनुष्य के लालच ने भी हमारे धरती पर जैव विविधता का अंत का कारण हुआ है. नाउ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें इस जैव विविधता को बरकरार रखना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए? सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल बिकॉज बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर और बैलेंस इन द इकोसिस्टम. क्योंकि यह जो जैव विविधता है वह हमारे प्रकृति में एक संतुलन पैदा करता है एंड हमारे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी में भी इसने संतुलन स्थापित किया है. जैसे आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं, खासकर छोटे पौधों की संख्या बड़े पौधों की संख्या से बहुत अधिक होती है. उसी तरह से छोटे जंतुओं की संख्या बड़े जंतुओं की संख्या से अधिक होती है. जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी संख्या मांसाहारी जंतुओं की संख्या में ज़्यादा होती है. छोटे पौधों की संख्या शाकाहारियों की संख्या में ज़्यादा होती है. क्यों? सो दैट अ बैलेंस कुड बी एस्टैब्लिश्ड. अगर हरे पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर जंतुओं को रहने का स्थान नहीं होगा. अगर शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर जो छोटे और बड़े पौधे हैं इनकी संख्या खत्म हो जाएगी. अगर मांसाहारियों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर शाकाहारी नहीं रह पाएंगे. सो आवर नेचर हैज मेड अ बैलेंस थ्रू दिस बायोडाइवर्सिटी एंड वी नीड टू सेव देम फॉर द बैलेंसिंग इन देयर नंबर एंड different aspect for the natural processes. Wild animals and plants provide a variety of commodities. जैसा कि आप जानते हो जंगली जंतु और पौधे हमें तरह तरह की सामग्रियों को प्रदान करते हैं. Wildlife is needed for breeding programs in agriculture, horticulture, sericulture and apiculture, etc. We human beings are a part of nature and all the components of nature are interdependent. Any damage to its biodiversity will threaten the whole support system and will be a threat to human existence. Therefore, biodiversity needs to be conserved. चूँकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि इन सबका एक संतुलन स्थापित हमारी प्रकृति ने पहले से ही किया है. अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी या अधिकता होती है तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हम मानवों के जीवन पर. और एक समय आएगा अगर हमने इसको लगातार डैमेज किया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारे अस्तित्व के लिए यह खतरा साबित होगा. So flora and fauna. Flora means the plant kingdom and fauna means animal kingdom. The plants found atypically in particular area form the flora of that area. The term fauna represents the wild animals found in a particular place or particular geographical region. For example, trees of jamun, mango, guava, pine, cheed, oak, deodar, bamboo form the flora of Himachal Pradesh and trees of dhak, salai, jamun, arjun and bear form the flora of Rajasthan. Tiger, leopard, antelope, sambar, chinkara, nilgai, porcupine, hyena and wild boar represent the fauna of Rajasthan. Endemic species. Some species of plants and animals are found exclusively in a particular area and do not occur naturally
एनीवेयर एल्स, यानी कुछ खास तरह के जंतु और पौधे यह एक खास स्थान में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है, वहाँ का जो मिट्टी होता है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वह उसी खास पौधे और जंतु के लिए बनी होती हैं, और इनको ही हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। सच स्पीसीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज टू दैट स्टेट, कंट्री और जियोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लायन, whose name बब्बर शेर is endemic to Gir forest in Gujarat, and Himalayan weasel is endemic to Himalayan region. Snow leopard is endemic to Himalayan range, found from Kashmir to Sikkim. Wild mango and sal trees for endemic flora of Panchmadi biosphere reserve. The existence of endemic species is often threatened due to the introduction of exotic species from some other geographical area. As you have seen that how some of the special species found in a particular region of the country, and you know that the climatic zones, the climatic circumstances help them to survive in a particular place. इसलिए क्या ज़रूरत है कि इस तरह के जो एंडेमिक प्रजातियां हैं उनको हम दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं ले जाएं, ताकि हम इस तरह के खास प्रजातियों को बचा सकें। अदरवाइज अगर हम इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं तो यह इनके लिए क्या हो सकता है, खतरा साबित हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड others we shall learn in the next video. Till then, thank you.